Hello students, how are you all? Today I am going to record chapter number 1 of class 10 economics, and the name of the chapter is development. So as economics was already introduced in class 9, so you're a bit familiar with economics, but here in class 10 you will talk about a little advanced topics. As I just said, it is development. You can see this side on your screen is the NCERT book which is open here, so that you can refer NCERT word by word, line by line. Alright, so let's begin. So development में हम क्या पढ़ेंगे? Let's begin with this. The idea of development or progress has always been with us. We have aspirations or desires. Okay, so हम सबकी कुछ ना कुछ aspirations और desires होते हैं about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like. What are the essential things that we require? Can life be better for all? How people should live their life or live together? Can there be more equality? ये सारे questions हम सबके mind में आते हैं. So development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. अब हर एक का कोई ना कोई goal है. So इन goals को achieve करने की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो उसे हम development कहते हैं. This is a complex task, and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. You'll learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. कुछ portion अब वहाँ भी cover करते हैं. This is because the way we live today is influenced by the past. We cannot desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. They are justifying कि हिस्ट्री में आप क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज आप इन्फ्लुएंस होते हैं पास्ट से. पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि डेमोग्राफिक पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है. तो ये बातें आप वहां भी डिस्कस करेंगे. What development promises is the first topic of this chapter. अभी तक आप ब्रीफ समरी पढ़ रहे थे कि एक्चुअली आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं. तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे ये पहला क्वेश्चन, What development promises different people different goal. अब सबसे पहली बात तो जो आपको समझनी है कि लोगों के लिए, हर एक के लिए डेवलपमेंट अलग बात है और किसी दूसरे के लिए. अब ये कंपैरिजन बिटवीन पीपल भी होता है, कंपैरिजन बिटवीन स्टेट भी हो सकता है और कंट्री भी. एक बात और जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो है कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड डेवलपमेंट? फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस. डू यू नो डेवलपमेंट और ग्रोथ? आप सोचे जरा, क्या ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है या इसमें कोई डिफरेंस है? जस्ट थिंक अबाउट इट. लेट मी एक्सप्लेन. ग्रोथ टर्म जो है ये थोड़ी क्वांटिटेटिव टर्म है. क्या है? क्वांटिटेटिव, क्योंकि इसमें वी टॉक अबाउट क्वांटिटी, जबकि डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव. सो इट इज बोथ. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव. मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूं जिससे आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी. Now when I say quantitative means, जब आप कहते हो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, हाउ डू दे चेक कि ग्रो कर रहे हैं? तो घर में रिलेटिव्स आते हैं ना, वो कहते हैं देखिए बच्चे ने हाइट निकाल ली है. सो दे चेक थ्रू हाइट विच कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटेटिव. वेट से भी कह देते हैं थोड़ा मोटा लग रहा है, सो इट मीन्स वेट, क्वांटिटेटिव, राइट? तो ये क्वांटिटेटिव टर्म्स है. इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट योर ग्रोथ. Now when they talk about your growth as well as वो कहते हैं बच्चा मैच्योर हो गया है यार, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? चेक कर रहे हैं आपका मेंटल स्टेट ऑल्सो. So when they talk about both, so they are talking about your development. When they talk about only about quantitative terms, they are talking about growth. अब कंट्री से कनेक्ट कीजिए, इकोनॉमिक्स है तो कंट्री से रिलेटेड है. कंट्री में जब आप बात करते हैं कंट्री के प्रोडक्शन की, कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हाउ डू दे मेजर? दे मेजर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. तो व्हेन दे टॉक अबाउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या आपने बहुत बार टर्म सुना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्या होता है?
कितनी कंट्री में प्रोडक्शन हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है. सो व्हेन दे टॉक अबाउट जीडीपी, that means it is the growth term. So we are trying to check the growth of the country. But at the same time, when we talk about GDP as well as लोगों का सोशल स्टेटस, भाई लोगों का सोशल वेलबींग अच्छा हो गया है, लोगों को बहुत एजुकेशन मिल रही है इस कंट्री में, दे आर कैरिंग गुड हेल्थ. जब हम इन एस्पेक्ट्स की भी बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं बच्चों? हम बात करते हैं डेवलपमेंट की. आई एम श्योर आई मेड both the words clear. Okay, so you should remember. अब डेवलपमेंट किसी के लिए कुछ और किसी दूसरे के लिए कुछ और हो सकती है, क्योंकि लेट मी चेंज द पेज. ओके, डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. जैसे मेरे लिए मेरा वेलबींग हो सकता है, मेरे लिए डेवलपमेंट हो, ठीक है, मैं आई अर्न गुड इनकम प्लस आई लिव अ वेरी लेविश लाइफ. सो फॉर मी इट इज डेवलपमेंट. एंड फॉर यू, ए पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा घर, गाड़ी, पैसा, और उसके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में जाते हैं, स्कूलिंग, राइट, ये सब चीजें उसके लिए हो सकता है डेवलपमेंट हो. लेकिन एट द सेम टाइम बी के लिए जॉब सिक्योरिटी, इट्स अ क्वालिटेटिव टर्म, जॉब सिक्योरिटी या आप कह लो फ्रीडम, इनके लिए ये हो सकती है. So it means development term is different for different people. Okay, ये भी हो सकता है जो A के लिए डेवलपमेंट है वो B के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है ना राजे. कैसे? A ने B के फार्म, ये B फार्म एरिया, इसका बहुत बड़ा फार्म एरिया है, ही इज अ फार्मर, और इसका एरिया इसने ऑक्यूपाई कर लिया A ने, जो कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है. सो दिस मैन इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट. अब इस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए यहां पर जमीन लेकर इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर देना इज डेवलपमेंट. बट फॉर अ फार्मर इट इज नॉट. ही वांट्स टू डू फार्मिंग बट फोर्सफुली और मे बी अंडर सम प्रेशर ही हैज टू सेल दिस लैंड टू दिस इंडस्ट्रियलिस्ट. सो फॉर ए इट इज डेवलपमेंट, बट फॉर बी इट इज नॉट डेवलपमेंट, इट इज फॉर हिम इट इज डिस्ट्रक्शन. सो इसलिए हम कहते हैं डेवलपमेंट टर्म कॉमन नहीं है, ये कोई ऐसा टर्म नहीं है कि development means for everybody it is the same, right? So let's reach to the book. Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons listed in the table. 1.1, what are their aspirations? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other category of person. जैसे ये देखिए, रिक्शा बोला, you want a car? The way our country is set up, all you can hope for is be one day own the rickshaw you pull. So ये उन्होंने अपना डायलॉग दिखा दिया कि भाई उसका एस्पिरेशंस क्या है. आप 1.1 टेबल पे आओ. सबसे पहले बात करें लैंडलेस रूरल लेबरर की. अब एक लैंडलेस रूरल लेबरर की एस्पिरेशन सोच के देखो क्या होंगी. उसे भैया बेटर वर्क चाहिए, एटलीस्ट उसे ज्यादा दिन काम मिले, अच्छी सैलरी मिल जाए, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन उसके बच्चे को मिल जाए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ ना हो, है ना, एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, मतलब विलेज में उनका एक थोड़ा रोअप होना चाहिए. प्रॉस्पेरस फार्मर के लिए क्या होगा? उसकी इनकम हाई हो जाए, उसे गुड सपोर्ट प्राइस मिले गवर्नमेंट से, अच्छा पैसा, उसे चीप लेबर मिल जाए जो बहुत हार्डवर्किंग हो, सस्ती लेबर उसका ड्रीम हो सकता है, और वो अपने बच्चों को फॉरेन सेटल करना चाहता है, ये इसके ड्रीम है, राइट. फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तुम्हारे हिसाब से इसका ड्रीम क्या होगा? अच्छी गुड रेनफॉल हो जाए इस बार, उससे अच्छा रेन क्रॉप जो है, रेन की वजह से गुड क्रॉप हो जाए. अब अच्छी क्रॉप हो जाए तो अच्छी इनकम हो जाए, राइट. तो ये होगा, फिर उसका घर अच्छा चले, बच्चे स्कूल जाएं, ये सब हो सकता है. रूरल विमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, इसको क्या होगा? रूरल विमेन, शी मे वांट टू गो टू अर्बन एरिया फॉर सम डेवलपमेंट, हो सकता है इसको एजुकेशन लेना हो, है ना, एक बेटर फ्रीडम लाइफ चाहिए हो, डिसीजन मेकिंग हो, ये सब अपना अपना. आप हो सकता है कुछ डिफरेंट सोचे, मैं हो सकता है कुछ डिफरेंट सोचूं. सो हर एक के लिए ये डिफरेंट है. सो यू आर सपोज्ड टू फिल दिस पर्टिकुलर टेबल to get an idea that different people target different, they do have different aspirations. A boy from a rich urban family
तुम जैसे बच्चे भी हैं जो रिच फैमिली से हैं, इनको क्या चाहिए, इन्हें बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, एक वो बुलेट चाहिए, और फिर उनको अच्छा पॉकेट मनी चाहिए, राइट? आई डोंट नो वेदर यू वांट, यू आर टारगेटिंग द हाई degrees or not, है ना? You may target to go to abroad to get the studies, या in India to target good universities. So you may have different goals. Girl from rich family, बहुत बार तो गर्ल्स को फ्रीडम ही नहीं मिलती, so उन्हें वो सेम फ्रीडम चाहिए जो उनके भाई को मिलती है. ओके, सो इस तरह से आदिवासी को क्या चाहिए, नर्मदा वैली से आदिवासी को इक्वालिटी चाहिए, उन्हें भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए. ओके, उनके बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स चाहिए उन्हें वहां पर. सो इस तरह से डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स. So let's finish this particular paragraph in this video. Having filled 1.1, let us now examine it. Do all of these persons have the same notion of development? Most likely not. So this can be a question in the paper. क्या सब लोगों के लिए development का मतलब same होता है? आप कहेंगे most likely not. Each one of them seek different things. They seek things that are most important for them. That is, that which can fulfill their aspirations or desires. In fact, at times, two persons or group of persons may seek things which are conflicting. A girl expects as much freedom and opportunity as her brother, and that he also shares in the household work. अब गर्ल्स को ही बोला जाता है अभी भी बहुत सारी फैमिलीज में कि घर के काम के लिए तुम उठो. Why can't the brother also get up and help? So a girl expects that freedom or that equality in the family. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams. अब जब डैम बनाया जाएगा, ये बेटा आपने पूरा आंसर लिखना है अगर आपको ये क्वेश्चन आता है. Different people have different aspirations. कैसे? तो आप एग्जाम्पल्स दीजिएगा. एग्जाम्पल नंबर 1 गर्ल का, दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट का. But this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced. अब देखो जब डैम बनता है तो उस एरिया के लोगों को डिस्प्लेस कर देते हैं, किसी दूसरी जगह भेज देते हैं, because it becomes risky to live there. So कुछ ट्राइब्स जो है उन्हें मूव करना पड़ता है, which is not good for them. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate land. So two things are quite clear. One, ये एंड में आपने लिखना है. One, different persons can have different development goals, and two, what may be development for one may not be development for the other. हमने यहाँ बात की थी ना, A के लिए development हो सकता है, development हो, but B के लिए वो destruction हो सकती है. It may even be destructive for the other, right? So this was all about the first paragraph, which was related to different people have different aspirations, और अलग लोगों के लिए development का मतलब अलग होता है. Rest I will cover in the coming videos. Bye bye.